आज आप मुझे कोई लम्स और IBA का ग्रेजुएट उठा दो जो कहे मैं हायर्ड नहीं, मुझे जॉब ऑफर्स नहीं आ रहे. नो, बिकॉज there's absolutely no problem in calling yourself a professional. कोई बात नहीं, बट पहले बन तो जाओ. वो शाहरुख खान ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी ना कि आप तो नहीं बनना चाह रहे HR इन्फ्लुएंसर. यार the day I become ना, आप सबसे पहले मेरी पॉडकास्ट डिलीट कर दो. या मुझे दोबारा बुला के कहना कि यार ये क्या, देखें आप क्या रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, क्या किस पॉइंट पे आप कह रहे हैं कि ये चीज ही गलत है? For me that revolution started 2-3 years back. कि देखो, मैंने अपने recent LinkedIn posts में कुछ unconventional तरीके बताए थे अपनी communications को ठीक करने के लिए, ठीक है, जिनमें number 1 was कि CEO applied in his own company. Now a CEO of a company applying to his own, and this CEO is someone who he had generously invested in ATS and all HR technology. His CV got rejected. You would question, how can that happen? I saw that he fired HR. Yeah, he did. अब देखो, जो उसके नीचे सवाल था ना वो बड़ा पर्टिनेंट था कि सर आपने रेट बड़ा कम लगाया, 5,000 थोड़े से ज्यादा बढ़ा. चले मैं रेट वही रखता हूँ, मैं करेंसी चेंज कर ये बात अच्छी की. I would love to do on a really good platform like yours as well, how a good interview looks like, what good marketing questions look like, what good accounting questions look like. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स. आज हमारे साथ गेस्ट हैं जी अली खालिद साहब. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अली भाई. थैंक यू. आपने अली खालिद साहब को देखा होगा, ही इज़ वेरी वोकल ऑन लिंक्डइन ख़ास तौर पे. ही इज़ फाउंडर एज वेल ऑफ गेट वर्क नाउ. और लिंक्डइन पे बहुत वोकल हैं जी, ख़ास तौर पे HR बाजी के बारे में काफ़ी कमेंट्स भी करते हैं और काफ़ी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंप्रेशंस ऑन दोज पोस्ट्स. तो व्हाट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड HR वाली बाजी? Yeah, the inspiration has a lot to do with, in fact, it all comes from the journey that I've had in my career. ठीक है, and I see HR as a really, as a department that has a lot of potential to grow. But right now, wo direction is a little distorted. I actually created a startup in HR. ठीक है, coming from a finance background, being a core finance and accounting professional, I had this idea. It was an inspiration. It came to me as an idea, much like any startup idea comes. So, but now when I see what is happening out there, so मैं थोड़ा सा उसको I try to, without the recognition of any fame and all that, I just want to sort of voice my, my own personal feeling about it. कि यार, this is not in line with what I've seen, and this is not definitely in line with what I envision in HR to be. राइट, तो थोड़ा सा उसको एक ह्यूमरस वो करने के लिए, क्योंकि हमारी कॉम उसको ज्यादा रेजोनेट करती है उसके साथ. तो आप किट लेते हैं HR वालों यार, that's what people say, लेकिन quite honestly मेरा कोई from your platform I'd like to just openly say कि absolutely no personal grudge or no कह लो concern with anyone. बट ये कि हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि there's something that needs to be told, हाँ, एक कहने का तरीका मेरा अपना है. I am someone who नहीं. तो आपको क्या फील हुआ कि क्या इश्यूज क्या हैं जिसकी वजह से आप इतना वोकल हुए इस चीज के ऊपर? यार, सो प्राइमरीली देखें, आप अपने मुल्क में कभी भी मुझे बता दें, यू पीपल कम फ्रॉम द प्रोफेशनल बैकग्राउंड इज वेल, कभी भी कोई ऐसा टाइम आया जहाँ आपने कहा हो नहीं यार, इस वक्त जो आपकी जॉब मार्केट है perfectly stable है, एक बड़ा अच्छा balance maintained है between the opportunities available and the resource available. नहीं, companies are always looking for better candidates are always looking for better jobs. ठीक है, so वो gap हमेशा दोनों sides पे exist कर रहा है. लेकिन उनको bridge करने के लिए जो department बनाया गया है उसका नाम है HR. ठीक है, उस department की एक responsibility है on top of all the other responsibilities that they have. That is to make sure that recruitment or that connect is made in the most professional way. ठीक है? As a representative of that department, it is your job to not promote yourself. Promote the opportunity in your company. Promote the culture in your company. When you become a brand that you start marketing bigger than the brand of the company, वो डिस्कनेक्ट वहां आ जाता है. फिर एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, देखें, आप स्लाइड क्वेश्चन टू यू, आपका कितना एक्सपीरियंस है प्रोफेशनली? आई थिंक 12 years.
आज आप अपने आप को कहेंगे कि आप एक सीजन्ड प्रोफेशनल हैं और आप जबरदस्त आप अपने आप नाम के साथ 6-7 टाइटल्स लगा लेंगे। नहीं बिल्कुल। मेरा 15 years प्लस है, मैं अभी भी अपने आप को क्लोज टू अ प्रोफेशनल नहीं कहता, ठीक है। हाँ, सी लेवल पे पहुंच गए, डिपार्टमेंट्स बना लिए, ड्राइव कर लिए, टीम्स चलानी, अपने आप को प्रोफेशनल कहना और किसी और के मुंह से सुनना कि आप प्रोफेशनल हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। मैं अगर आज अपने आप को एक हेलुसिनेटरी वर्ल्ड में ले जाऊं, कहूं नहीं मैं प्रोफेशनल, मेरे करियर में गैप्स हैं, मैंने तकरीबन अपने 6 साल की कंपनी में 5 जॉब्स बदली हैं, 6 साल का करियर है, 4-5 जॉब्स बदली हैं, एंड मैक्सिमम में मिड मैनेजमेंट लेवल पे आया हूं, लेकिन भाई मैं प्रोफेशनल। Unfortunately, that is what influencers and that whole, mode of fame has done to you. कि आप वहां पहुंचे नहीं हो, and that is why you started relying on AI, because आपकी अपनी knowledge वहां नहीं है. You started using tools like ChatGPT and other AI tools to tell you what to act like as a professional, because you're not there yourself. That gap is being filled by AI, and वो बड़ा आम नजर आ जाता है जब आप देखते हो कि यार इनकी पोस्ट्स जो हैं वो ऐसे लिखी हुई हैं, एक्चुअल कम्युनिकेशन ऐसे है, बातचीत ऐसे है, बट रिटन कम्युनिकेशन ऐसे है. सो आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इट. माय ओनली कंसर्न इज कि यार हु इज गेटिंग इम्पैक्टेड. It's a human resource out there that needs to be placed at the right companies in the right way that is being impacted. That's about it. तो इसीलिए वो चीज़ एक ट्रेंड शुरू हुआ. I see a lot of depth in your conversation, और I'd like to touch on आपकी जो जर्नी थी. आपने क्योंकि you started as a financial expert, right, and you worked more on that side, और फिर HR पे आपने जो switch किया है और अपने जो startup है आपका. So can you tell us a little more about how your journey changed that route? Thank you for that question. Yeah, it's actually an inspiration. मैं fresh out of KPMG, CA graduate, I went into my first job interview. ठीक है? And I'll be very candid about it कि मेरा एक बहुत अच्छी firm में हुआ जब, तो I didn't really get the taste of that interview because I made it through with my first interview in a firm. जब मैं एक जॉब में आया, मेरी पहली जॉब was with a Fortune 500 company. And I stepped into that interview room. Before that interview room, in fact, the waiting room, so I saw about 15-16 people sitting over there. That was my, actual moment of self-realization. When I got this interview call, I was thinking like, these guys have found themselves the best candidate. The second I walked in there and I see 15 people and 2 more standing at the counter, okay, there's more like me. So this is actually going to be a process, right? Because उस वक्त तक as a first time job आपका होता है कि यार मुझे ही बुलाया है, so that's that's they have to hire me. यहाँ मैंने एक और भी चीज रियलाइज की कि मुझे तो कभी किसी ने बताया ही नहीं कि यार एक्चुअल जॉब इंटरव्यू जो है वो कैसे होगा, एनवायरनमेंट क्या होगी और आप कैसे स्टैंड आउट करोगे और क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है, एंड देन व्हेन यू कम आउट ऑफ दैट इंटरव्यू उसके बाद क्या होगा. So all those realizations sort of clouded upon me sitting over there. And now I'm sitting in the room looking at faces, they're looking at me, आपस में पूछ रहे हैं अच्छा आप कहाँ से, अच्छा आपने क्या, and आपको now you're going into that feeling where you think everybody's better than you. You have to be the least favorite candidate, right? So when that interview happened, at that point in time I understood कि यार एक actual human interaction where somebody you don't know, somebody who has absolutely no concern with your personal life, your characteristics as who you are as a human being, wants to evaluate you as a professional. ठीक है, आप कैसे जवाब देते हो. तो the tables had turned on me. ठीक है, और वो interaction को मैंने बड़ा deeply अपने साथ carry किया, because that journey happened from 1 interview to now 3 interviews. The time duration was about a month and a half, but I made it to the job. मुझे जॉब मिलने से ज्यादा खुशी ये थी कि यार ये जो मैंने इंटरेक्शन गुजारी है ना, दिस इज लाइक आई वॉक्ड थ्रू अ फ्रिकिंग आर्मी बूट कैंप और समथिंग. ऐसे कोई ना कोई मैंने एक वो नहीं कहते ऑब्स्टिकल कोर्स है वो पूरा किया है. ठीक है, and in the final interview I remember, which was a panel interview, now the CEO is sitting, the MD is sitting, the CFO is sitting, the HR head is sitting. I had actually broken into a sweat. ठीक है, और and I take pride in how I communicate, right? So I had broken into a sweat. I came outside.
Now what has happened is ke in very early in my career, alhamdulillah, I moved to another city and I got an opportunity to lead a department. And in that department, in that company, I had the opportunity to create a team, which is how now I started hiring. During that hiring, a candidate मेरे पास आता है and I start to see myself in every candidate because पहली दफा हो रहा है that I'm now taking the interview. Yeah. So a really good candidate comes in with the profile and I again exposing my own self here कि I go brutal with him on the interview. ठीक है? And I see him breaking into a sweat. ठीक है? And I'm like यार ये है तो ये interaction बड़ी जबरदस्त है and I thought I was unprepared for it. Everybody's unprepared for it. ठीक है? I don't see anyone coming in prepared for it, right? This kid came from a very good university. One of those universities that supposedly have a career placement center that should train you for it. वो लड़का ना when he got up, he said, "Sir, job मिले ना मिले, but learning बहुत हुई है." Unfortunately, there were good candidates, better candidates जो आए and we gave the job to someone else. यार, truth be told, that kid came, he traced me out. So in about 3.5 years, I had transitioned to another company. This guy had started working somewhere else. My now next company had posted another job and this kid applied for it. And when he came to the interview room, he said, "Sir, one of the reasons for applying to this job was because I wanted to face you again." Wow. Now in 3 years, I am seeing this monumental shift of personality. This guy is someone else. He's still the same graduate. He's a master's. Uske academics में change नहीं हुआ. But the way he has presented himself on a resume, and at this time, I am not even seeing his CV. I am spellbound at how he has just taken that whole, deep dive into his own self और उसने अपने आप को ठीक किया. He ended up getting the job. अब उसने उठते हुए मुझे एक ऐसी बात की कि सर, you can be many things in life. But the one thing that you can really teach people is how to give a good interview. An interview that can change their lives. It changed mine. Now he says that to me, he goes out, zindagi normal chal rahi hai, meri zindagi hila di uski is baat mein. I go home, I start talking to my family. I said, yaar, sahi baat ki hai isne. I mean, what happened? I mean, I just took an interview and he came back after 3 years and he got the job. So there's बहुत gaps समझ आ गए. यूनिवर्सिटीज में जो करियर प्लेसमेंट सेंटर्स को सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाया जा रहा. कैंडिडेट्स जो फ्रेश आउट ऑफ द जॉब आ रहे हैं वो क्यों इंटरव्यूज तक नहीं आ रहे. एवरीथिंग इज राइट फ्रॉम डिग्री टू हेड हंटिंग टू नेटवर्किंग टू व्हाटएवर टिल द टाइम यू पुट अप दैट परफेक्ट सूट ऑफ योर्स एंड वॉक इनटू दैट इंटरव्यू रूम. व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, दैट इज वेयर द फॉल डाउन इज. वहां कोलैप्स हो रहा है. तो उस गैप को आइडेंटिफाई कर लिया. अब स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज क्या है कि आप एक गैप आइडेंटिफाई कर लो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लो. वो आइडेंटिफाई हो गई. नाउ आई वांट टू मेक श्योर कि मैं जो करने जा रहा हूँ गलत तो नहीं है. आई गो एंड आई टॉक टू पीपल हु आई नो एंड alhamdulillah I have a good network. I talked to a friend excuse me, who's an HR head of a really big company, right? I asked him, yaar, why can't you hire the right people? Why are you always looking out for people? My question to you was simple. तुम्हारे पास recruiters हैं, executives हैं, ATS software है. Why can't you hire people? Yaar, interview. There's something else in the interview. So now I start talking to similar people and all of them say the same thing. Interview में problem आ रहा है. Interview में problem आ रहा है. That's how I started thinking about, yaar, there needs to be something that focuses only on the interview. हम CVs के ऊपर नहीं गौर करेंगे, हम उस पे नहीं. Candidate है, he sits in front of a mock interviewer. The interviewer evaluates कि वो बंदा कैसा है, क्या है, और जो HR का infamous line है, we'll let you know, we'll get back to you. उसको हम उसी वक्त बता देंगे through a proper scorecard evaluation that yaar, our mock interview thinks you can make it to the next round or not. And sorry, we mirrored an actual corporate interview journey. Okay, pehla is a personality assessment, second is a subject matter assessment, third is an executive assessment. Is it based on AI or natural? So when we started उस वक्त AI transitioning, this is around 3 years back now. ChatGPT नहीं आया था. People were just starting to realize कि AI जो है वो कैसे कैसे change कर सकता है. For me, being the founder, the human
touch, the human contact was very important. ठीक है कि यार मैं जितना भी टेक ले आऊं HR में, ठीक है, unless and until वो human interaction के results मुझे नहीं मिलेंगे ना, तो मेरा मॉडल जो है वो डिफीट करता है पर्पस को, ठीक है. बट नाउ 3 years down the line now, I think yes, while this interview interaction is happening, I may definitely be able to use some state-of-the-art AI tools to assist the interviewer in giving that feedback. कि यार, you know, what you think is a body language stress, we think it's not. तो वो एक अच्छी चीज हो सकती है. बट जस्ट सेइंग कि आप देखें सीवीज के ऊपर बहुत एनालिसिस हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, विच इज व्हाई सीवी का एआई आ गया, एटीएस आ गया जो कि बेसिकली रेलेवेंट रेज्यूमेस को बेस्ड ऑन कीवर्ड्स फिल्टर कर देता है. बट दे आर ऑल लीडिंग द कैंडिडेट क्लोजर टू द इंटरव्यूअर रूम. तो उधर क्या है, एक सिंपल मॉक इंटरव्यू उस चीज को ठीक नहीं कर सकता. आप सिर्फ ये देखो कि सर्कलिंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, इट रिवील्स अ लॉट ऑफ गैप्स in the sense के do we even have qualified interviewers? Do we have people जो unbiased interviews लेते हैं? Who is certifying that those people who are, you know, given that responsibility to decide a certain candidate's career, क्या वो qualified भी है interview लेने के लिए? So is it kind of a process के एक कैंडिडेट आया, उसको एक स्टेप इंटरव्यू का, उसके बाद उसको स्कोर कार्ड मिला, फिर वो दोबारा अपीयर होगा और फिर वो उसको फिर से स्कोर कार्ड मिलेगा, एंड इज ही इम्प्रूविंग और नॉट? इज इट लाइक अ प्रैक्टिस थिंग? Good question. So yes, we made it into a process. Like I said, we mirrored an actual corporate interviewing journey. ठीक है? So we created a website, right? And based on that website, any candidate, by candidate I mean a fresh job seeker, whoever would want to go and look for a better job but has lack of confidence in interview, can go to our website, select not only the domain that he wants to be interviewed for, like HR, marketing, administration, finance, the level, now that is executive, assistant manager, deputy manager, and also the mode of that interview, कि वो physical देना चाह रहा है या online देना चाह रहा है. Once he books himself that interview, we then get that request, we source the interviewer, have that interview recorded via Google Meet or Zoom, record that interview. The interviewer then evaluates that, does a scorecard assessment, sends it back to the candidate. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि आजकल जब HR जॉब डिस्क्रिप्शन करते हैं तो फ्रेश ग्रेजुएट के लिए सबसे बड़ा इशू होता है कि वो लिखते हैं एक्सपीरियंस चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए. फ्रेश ग्रेजुएट कैसे जॉब से अप्लाई करे और कैसे इस सारे प्रोसेस को लेके चले? I don't believe कि बहुत ज़्यादा अभी भी इस चीज़ को देखा जाता है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो, you know, उनका यही ह्यू एंड क्राई होता है कि यार आप कहते हो जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए हमें जॉब चाहिए, तो वही सर्कल बार बार चलता रहता है. देखिए, for me, my journey of Get Work Now has really changed my way of thinking. मैं fresh graduates को ये कहता हूँ कि देखो, eventually you have to go through the same path. How you take that path, study that. What university you're coming from. It matters a lot. हम नहीं कहते कि सारी जो है वो top tier universities को afford कर सकते हैं, नहीं हो सकता, reality नहीं है, ठीक है? But the moment you realize कि यार मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हूँ जहाँ I have to be really good. I have to really up my game because out there you have the best top 3 universities. And now I'm talking about a job market that is widely saturated for many, many domains. HR itself बहुत saturated है, marketing saturated हो चुका है, finance बहुत saturated हो चुका है. So सबसे पहले college level पे अपने आप को you know start thinking differently कि how can I stand out by doing projects, by doing additional certifications, by doing some internships, कि आपको एक feel आ जाए. Now by the time you're out of your college, you should have a really good resume which tells an interviewer कि चलो यार, he doesn't have corporate experience but he's almost there to start. He's done some good internships which colleges allow करते हैं, semester breaks आती हैं. You can put in a couple of good internships, 4 to 6 weeks की internships आप कर सकते हो. And then his or her CV is telling me a good story, because सबसे बड़ा चेक ये होता है कि अगर एक fresh graduate की CV ATS compliant है ना, तो he has studied it.
He's been out there, he studied it कि यार मुझे stand out करने के लिए ना keywords ऐसे डाल दें, ये करना है. So now that he has invested now time and resource in making himself stand out. तो वो filtration cycle में आ गया. Next is again not unnecessarily promoting Get Work Now here, but next is that interview process. हर चीज को एक्चुअल करने से पहले अपना ट्रायल करें. CV बनाएं, ATS compliant CV बनाएं, put it through ATS compliance checkers. They're a dime a dozen outside. आप उनको करें, वो आपको पूरा स्कोरिंग बता देगा कि आपकी CV में सारा कुछ ऐसे ऐसे ठीक होना है. प्रोफेशनल CV जो बनाते हैं फ्रेशर्स को उनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन मेक श्योर दैट योर CV इज नॉट अ जोक. एंड सैडली आज भी मैं अब खुद बहुत कम रिक्रूटमेंट्स करता हूँ, मेरी टीम करती है, बट मेरे पास भी अगर कोई CVs आती हैं यार, आई लिटरली गेट flabbergasted at seeing grammatical mistakes, spelling mistakes. I mean यार, ये वो चीजें जो वर्ड बताता है आपको कि यार ब्लू लाइन मींस ग्रामर में कोई मसला है, रेड लाइन इज टेलिंग यू कि यार सम स्पेलिंग इज रॉन्ग. ठीक है, फॉर्मेटिंग एरर्स, इतना बड़ा बड़ा ऊपर करिकुलम वाइटे लिखा होगा, फिल्टर्ड पिक्चर्स आ रही हैं, बॉर्डर लगा हुआ है पेज पे. आई मीन यार, द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंट ऑन सोशल मीडिया. आजकल तो पिक्चर्स भी आती हैं मॉडलिंग करते हुए, ऊपर साइड पे आती हैं, फिल्टर्ड पिक्चर्स देखी हैं मैंने एक AI फिल्टर्ड पिक्चर देखी. अब आजकल एक नई जोन में आप जा रहे हो, आप लोग भी देखेंगे AI ड्रिवन पिक्चर्स आ गई हैं. आई इंटरव्यूड अ कैंडिडेट एंड आई आस्क्ड हर कि यार, डू यू रियलाइज दिस इज नॉट योर ओन पिक्चर, दिस इज एन एवटार or something that looks like an avatar. So she's like, I believe she closely represents who I am. She represents who I am. Killed the genuinity इसका of your मतलब own CV. I think we should hire a AI जो आपने जिससे जनरेट किया है. कोई हायर कर लो मेरी यार. But देखिए वही बात है ना कि टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, और यहाँ मैं समझता हूँ our universities play a massive role in telling them कि यार you're getting closer to that point where you are now going to go out in the corporate market. ठीक है? Unfortunately, a lot of universities, again, not taking any names, when you look at their social media, what are they selling? Events, get-togethers, outings to northern areas or whatever, parties, bonfires. I mean, where's the education? Where's for me, आज एक अच्छी यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ एक KPI है, उनका कितना अलमनाई मार्केट के अंदर कहाँ प्लेस्ड है. बेटर यूनिवर्सिटीज देयर आर 2 or 3. आप आज भी उनके लोगों से जब आप उनका रेफरेंस लेंगे ना, वो कहेंगे यार उस कंपनी में वो लोग बैठे हैं, उस कंपनी में उस यूनिवर्सिटीज के लोग बैठे. फॉर मी दैट इज व्हाट अ गुड यूनिवर्सिटी शुड बी एबल टू गिव यू. यू पीपल आर वर्किंग इन गुड कंपनीज, अ लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, बिकॉज सबसे पहली चीज वही देखी जाती है. सो दैट इज वेयर यूनिवर्सिटीज शुड एक्चुअली स्टेप इन and start telling people कि यार बहुत कंपटीशन है बाहर भाई, अभी से अपने आप को ठीक करो, इंटर्नशिप्स करो. आपको नहीं लगता है कि एकेडमिया और इंडस्ट्री लिंकेज, एजुकेशन और इंडस्ट्री लिंकेज उतना स्ट्रांग नहीं जितना होना चाहिए? यार again in my journey I went to many career placement centers. ठीक है, we reached out to almost all universities in Punjab, Sindh, Islamabad, and we were invited by many because the idea resonated. And again it was a shocker कि देखिए सबसे पहला फॉल आउट क्या है, यूनिवर्सिटी करियर प्लेसमेंट सेंटर्स में उन्हीं यूनिवर्सिटीज के बच्चे बैठे हुए. हाउ कैन यू डिसाइड समवन्स करियर व्हेन यू योरसेल्फ हैव नॉट स्टार्टेड अ प्रॉपर करियर? ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है. देन आप देखें कि उनकी लिंकेज में मैंने अभी तक, आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मैंने अभी तक 2 चीजें देखी हैं. एक, दे हेल्प देम आउट विद अ CV कि यार ये एक फॉर्मेट है, इस पे अपनी CV बना लो. ठीक है, चले हम तो AI दौर में आ गए हैं, वो चीज पीछे कर लें. करियर फेयर्स होते हैं, करियर फेयर्स में मल्टीपल कंपनीज के HR हेड्स आते हैं, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है. मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल था लोगों से कि जी हेल्प मी आउट, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, collaborate with me, help me out, tell me in your career fairs where you are bringing in people from top-notch companies. How many companies have, after these career fairs, actually hired candidates from your companies? So, 500 बच्चों ने mock interviews ही हो गए ना, वो mock interviews दिए. What is the percentage of actual hires, और hires भी छोड़े, percentage of actual job interviews that have emanated from those mock interviews?
and then percentage of conversions from those interviews, because that should be your success. आपका सक्सेस ये तो नहीं है ना कि आपने पिक्चर्स लेके उसकी सोशल मीडिया माइलेज ले ली. That's another KPI. How many people are actually making it out there? क्योंकि हम तो recruitment, we're sitting on the other side of the table. When we see your candidates, there are gaps in their resumes. They're not trained for interviews. और उनका आप LinkedIn पे जाओ, disregard what I'm saying. LinkedIn पे जाके आज आप सबसे कॉमन चीज देख लो कि फ्रेशर्स या कैंडिडेट्स जो के नॉन टॉप टियर यूनिवर्सिटीज से आ रहे होते हैं, वो क्या कह रहे होते हैं? वी डोंट हैव रेफरेंसेस, वी डोंट हैव रेफरल्स. यार जॉब्स तो खाली अच्छी यूनिवर्सिटीज वालों को मिलती है. या आज तक का क्राई है, 10 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, आज तक भी. तो हम ये तो माने ना, देखिए एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि द बिगेस्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज रियलाइजिंग दैट यू हैव वन. जब आप उस प्रॉब्लम को डिसरिगार्ड करते हैं कि नहीं चल रहा है, सब ठीक है, यूनिवर्सिटीज पैसे कमा रही हैं, बच्चे डिग्रियां ले रहे हैं, सब ठीक है. यार कोई रीजन है ना कि गैप एग्जिस्ट करता है आज तक, और वो जो सैचुरेशन है वो उन 99% यूनिवर्सिटीज की और 1% सारे हायर्ड है. आप मुझे बताएं, आज आप मुझे कोई लम्स और IBA का ग्रेजुएट उठा दो जो कहे मैं हायर्ड नहीं, मुझे जॉब ऑफर्स नहीं आ रही. नो, बिकॉज दे really worked hard and done a brilliant job in creating a network, in educating their candidates on how to. आपने freshers की बात की, believe me, मैंने endless town halls की हैं universities में. You can go to IBA's Career Development Center and they have a 2-hour career talk मेरे साथ live. हमने COVID में किया था, University of Lahore के साथ किया, बैरिया के साथ किया. Literally there is a marked difference between the freshers that come out of the top tier universities and non top tier. Top tier वाले आपको रगड़ देते हैं सवाल पूछ के. वो कहते हैं आप ये बात की कैसे, मेरा कंपैरिजन कैसे किया आपने आप. So you can see कि कुछ हो रहा है. So how is this gap being created? Because एक narrative ये भी तो हो सकता है कि टॉप टियर यूनिवर्सिटीज उठा ही उन स्टूडेंट्स को रही हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटी से पहले अच्छे मार्क्स ले रहे थे और फिर वो मेरिटोक्रेसी वहाँ से ही ड्राइव हो रही है. दूसरा आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि जो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज नहीं हैं शायद वहाँ पे बच्चों के ऊपर डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट हो रही है और पर्सनैलिटी डेवलप नहीं की जा रही. बोथ नैरेटिव्स डू एग्जिस्ट, राइट? You're very right. I can't really comment in depth on that, not knowing what a university's internal policies are, but I do know for a fact that when we went out to pitch Get Work Now, we said कि यार try and embed this service as a part of your curriculum. Try graduates, try these undergraduates or whatever to actually go through this process before they come out in the market. क्योंकि when they come out, तो the gap becomes apparent, the gap becomes very visible. ठीक है? तो ये create यहाँ से हो रहा है कि एक तो आपने उनकी, sadly for me, the environment in a university really matters. It really matters because अगर आप उनको यही बताते रहोगे कि यार तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे लेवल है, आपने मतलब यही जो हमने एक माहौल बनाया हुआ है, आप बाहर जाओगे जॉब्स तुम्हें यूं मिल जाएंगी. ठीक है, वो एक रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है. कैंडिडेट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम शुड बी वेरी और उनको यूनिवर्सिटीज की हेल्प की बाय द वे जरूरत भी नहीं है. वो लिंक्डइन पे अकाउंट्स बनाए. अगर मुझे आप 2-4 रिकमेंडेशंस मांगे ना, मैं ये जरूर कहूंगा कि यार आप ना कैंडिडेट्स को बड़ा जल्दी बताना शुरू कर दो कि यार लिंक्डइन क्या चीज है, हेड हंटिंग क्या चीज है, CV क्या चीज है, ताकि उनको रियलिटी चेक्स मिलते हैं. अच्छा, आजकल आप क्या समझते हैं कि जो लिंक्डइन पे और आगे पीछे जो HR इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं और वाकई क्या लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं? मेरा आई थिंक अबाउट 80% ऑफ माय कंटेंट रिवॉल्व्स अराउंड दिस. मैं बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन मैं एक चीज कहूंगा कि मेरे ऐसी जितना भी कंटेंट है ना, forget what I'm saying, look at the amount of people that resonate with what I say. Right? And you'll be surprised that a lot of them come from the HR background themselves. तो अगर उनको लग रहा है कि एक नॉन HR बंदा ये बात कर रहा है तो they are sort of agreeing कि यार भाई thank you somebody's most of the comments that I get is finally truth bombs. ठीक है, यानी hardcore truth बोल रहे हो आप. ठीक है, तो मेरा यही काम है. Again, saying it again, nothing personal with anyone, but to answer your question,
I don't think all that is being done is beneficial. Not at all. Why? Because देखें, influencer की etymology में जाएं आप. The word influencer, what does it mean? You're doing something to influence someone's either way of life or way of thinking. Change it, impact it in a way. ठीक है? आप उनकी अगर पोस्ट्स को पढ़ेंगे या सुनेंगे, you will not want to, or you won't even understand what to change. मेरे लिए इन्फ्लुएंसर कौन था? मेरे लिए मेरा इन्फ्लुएंसर वो बंदा था जिसने मुझे मेरे स्टार्टअप का आइडिया दिया. क्योंकि he went through that journey, he influenced my life. He had no relation with me. वो मेरे से जूनियर था, but his thinking and his act influenced me. ठीक है? अगर मैं लिंक्डइन पे आजकल क्या हो रहा है जो मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ कि, और आप देखें सिर्फ HR डोमेन में बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्यों, मैं भी इस जर्नी में हूँ कि क्यों हो रहा है, क्यों जरूरत पड़ रही है इतनी ज्यादा सेल्फ मार्केटिंग की, इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड के यार मैं दुनिया में ये रेवोल्यूशन अगला HR का मैं लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगी. ठीक है? और इतने ज्यादा गेट टुगेदर्स और मीटअप्स हो रहे हैं कि जैसे पता नहीं दुनिया का सारा मसला और आपका पाकिस्तान का जितना भी क्राइसिस है इकोनॉमिक और सोशल और व्हाटएवर, वो HR नहीं निकालना है आपके. जिस हिसाब से मीटअप्स हो रहे हैं, मैंने रिसेंटली एक पोस्ट ये लगाई कि मैंने ओपनली CEOs को कहा कि यार इतना टाइम कैसे मिल रहा है, और अगर ये सारा वक्त जो है इन गेट टुगेदर्स में और मीटअप्स में है, तो फिर हायरिंग कौन कर रहा है? आपके सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. दूसरा ये कि देखो, वही शुरू में जो हमने बात की कि देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन कॉलिंग योरसेल्फ अ प्रोफेशनल. कोई बात नहीं, बट पहले बन तो जाओ. वो शाहरुख खान ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी ना कि there's absolutely no problem in talking like a philosopher, but make sure you've made a lot of money before that. So वो वही बात है कि आप do you have what it takes to back your statement? मैंने इनमें से कई से बात की हुई है, I have an inbox filled with people saying कि sir we're not part of them anymore, we're not part of that group anymore, we're not part of that. Groups भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं, communities भी बहुत ज्यादा हैं. So they've been reaching out to me since long. They've been trying to call me and sort of have a discussion with. मैं realist हूँ. I cannot see myself becoming someone who I'm not. मैं आज भी नहीं कहूँगा कि यार मैंने जिस बिजनेस में जो बिजनेस आइडिया क्रिएट किया, तो उस बिजनेस आइडिया की डोमेन में बीइंग द फाउंडर आई गॉट पीपल हु आर मच मोर सीनियर टू मी, जिनको मैं कहता हूँ यार मैं करीब भी नहीं हूँ, प्रोफेशनल आप हैं. और आप यकीन करें, उनके जो प्रोफाइल्स हैं HR में, उनका लिंक्डइन जाके देखें, उन्होंने कभी अपने बारे में एक पोस्ट भी नहीं डाली होगी. बिकॉज I'll tell you a very good example. I wish you can in your podcast find out this picture from Google. It's very widely available. और इसको चला दीजिएगा. So वो पिक्चर है कि एक डॉग रेस है, हाउंड्स जो नहीं होते, ग्रे हाउंड्स जो रेसेस में, और एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे उन्होंने एक चीता को बांधा लेपर्ड्स के साथ रेस कर. Oh yeah, I've seen that. And the leopard is sitting. ऐसे ही. और उसका मोटो ये है कि sometimes in order to tell that you're the best, you don't even need to try. तो आप जब बिला वजह की स्पेंड कर रहे हो मार्केटिंग में अपने आप को, you're actually telling people कि यार nobody really appreciates me, I really don't mean much, I don't have much influence, I can't make much of a difference, hence I'm actually telling people, paying people to tell कि यार मेरे बारे में अच्छा कहो. बट उनका नैरेटिव ये है ना कि जो दिखता है वो बिकता है. ठीक है? देखें, बहुत अच्छी बात की आपने. तो फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बन जाए, टिकटॉक्स बना लें. अब तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी लिंक्डइन पे आ रहे हैं. एक्चुअली लिंक्डइन हैज बिकम वो लिंक्डग्राम या इस तरह के लिंक्डइन ने बड़ा बूम देखा है इन लास्ट 2-3 इयर्स में. क्या वजह, काफी लोग लिंक्डइन पे अब शिफ्ट होने लगे. देखिए, यही बात है ना कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में देखें, अगर मैं आपको कहूं यार आई एम समवन हु कैन गेट यू अ जॉब, आई विल इंस्टेंटेनियसली बिकम योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू वुड वांट टू टॉक टू मी मोर. ऐसा ही. ठीक है? उसी प्लेटफॉर्म पे मैं अपने आपके साथ, और अगर वी आर डिफरेंट जेंडर्स तो फिर वो स्क्रीनशॉट्स बताते हैं कि हम कैसी बातें शुरू हो जाते हैं. तो ये एक चीज है कि लोगों को जॉब की डेस्परेशन है, और वो जॉब्स का सबसे वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म इज लिंक्डइन, बट इट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म वेयर पीपल आर नाउ सोशली कनेक्टिंग. अब वो जो शिफ्ट फ्रॉम प्रोफेशनल टू सोशल है ना, वो बहुत टिल्ट कर चुका है. इट इज वाइडली नाउ बिकम अ सोशल इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म. रिलीजियस पोस्ट्स जा रही हैं, पॉलिटिकल पोस्ट जा रही हैं, आपकी और ऐसी पोस्ट जो कि कहीं से भी एक प्रोफेशनल स्फीयर के अंदर नहीं आती, लेकिन उनको वायरलिटी मिल रही है, उनको रीच मिल रही है.
अब जाकिर नाइक साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो आए हुए थे, उन्होंने कुछ बातें की वो कंट्रोवर्शियल है, किसी की नौकरी पे उसका क्या इफेक्ट है? लिंक्डइन भरा पड़ा है इस चीज से, ठीक है? whatever is happening in Palestine, humble, do we all stand by it? As Muslims we all stand by it. Can it impact your professional life? Should it impact your professional life? ठीक है? Again, आपकी जो इन्फ्लुएंसिंग है उसको आप जॉब्स तक रखो तो ठीक है. मैं अगर आज इन्फ्लुएंसर बनना चाहूं ना तो थोड़ा सा मेरे लिए बनता है, बिकॉज आई हैव माई ओन HR कंपनी, राइट? इफ आई एम वर्किंग फॉर अ कंपनी और मैं उनके लिए हायर कर रहा हूं तो मैं किधर का इन्फ्लुएंसर हूं? क्योंकि मैं तो वो हायरिंग कर रहा हूं जो उस कंपनी ने की है. दैट कंपनी शुड बी द इन्फ्लुएंसर, राइट? सो और वो कंपनी मेरे बारे में कुछ अच्छा नहीं कह रही, लेकिन मैं लोगों से कह रहा हूं मेरे बारे में अच्छा कहें. मैं कह रहा हूं मैं बहुत बड़ी चीज हूं. नहीं यार, आप you want to become that influencer, you want to go there, there's a journey to it. आपने तो फेलियर्स ही नहीं देखे. आप तो नहीं बनना चाह रहे HR इन्फ्लुएंसर यार? the day I become ना, आप सबसे पहले मेरी पॉडकास्ट डिलीट कर देना या मुझे दोबारा बुला के कहना कि यार ये क्या देखें. आप क्या रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं? क्या किस पॉइंट पे आप कह रहे हैं कि ये चीज गलत है? For me that revolution started 2-3 years back. कि देखो, try and realize कि एक्चुअली रेवोल्यूशन से ज्यादा जिस वर्ड से मैं रेजोनेट करता हूँ वो डिसरप्टिव है. डिसरप्शन क्या होती है कि एक ऐसी चीज आती है, उबर वाज अ डिसरप्शन कि यार पीपल डिडंट नो द नीड. सो मेरे लिए दैट डिसरप्शन इज कि यार रियलाइज कि दिस प्लेटफॉर्म दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, लिंक्डइन छोड़े किसी भी, you should work a lot more on who you are as a person in terms of how you sell yourself. Personal branding. ठीक है, and it should not be sold just through your pictures, just through a collection of your social gatherings, just through paid ad spending of what you want people to say about you. When you will actually become successful when others talk about you. When you're not even in the picture. When people will randomly tag you and say, yaar, you know, this guy got me a job. This guy did this. This guy did this. Celebrating a milestone of 20,000 followers. क्या हो गया भाई? उन 20,000 में से आपने नौकरियां किसको दी हैं? How many have you actually impacted? Influence किसको किया? Lives किसकी touch की हैं? It's a very good achievement on Instagram, on TikTok or whatever, which is why these increase in followers has never been monetized on LinkedIn. कि कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझ रहे हैं कि यार, you know, the actual usage of this platform is for people to get opportunities. मैं आपको openly बताता हूँ, मुझे मेरी लाइफ में जो मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है ना वो थ्रू लिंक्डइन मिली है. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू लिंक्डइन. बट आई हैव नेवर ट्रूथ बी टोल्ड अप्लाइड विया लिंक्डइन. देयर इज अ बिग डिफरेंस. ये कैसे, मतलब आपको डायरेक्टली बंदों ने अप्रोच किया फॉर द जॉब या क्या? सो नाउ शिफ्टिंग अ लिटिल टू माय जर्नी. माय फर्स्ट जॉब came through, उस वक्त LinkedIn was very, this is now back in 2011-12, तो LinkedIn था, but उस तरह से लोगों को पता भी नहीं था कि क्या है. When I came out of that job, and LinkedIn had now started becoming a tool, I started networking a lot. I started understanding कि यार job posters कौन है, and how are they, for me, a job poster or any employee, key employee of any organization जहाँ पे job है, for me, he is a grade 1 connection. मुझे उससे बात करनी है, ठीक है? So I started learning how to network with them. I even went to the point of understanding, अच्छा यार, where do these people hang out? What do these people do? Trying to sort of reach out to those people, because if I can somehow speak to those people, I can tell them what I do, what I can actually do for them. ठीक है? So these jobs, by the will of Allah, by the blessing of Allah, and a lot to do with this networking for me came through that. कभी भी मैंने अप्लाई नहीं किया, किसी से बात हुई भी थी, कभी भी ये भी नहीं लिखा कि यार now I'm looking for opportunities. Never go through my posts. Never. ठीक है, मैं एक और क्रिटिसिज्म ये भी करता हूँ HRs पे कि यार आप जॉब्स के लिए रिक्रूट भी कर रहे होते हो और ओपन टू वर्क भी होते हो. How are you calling someone to work in your company when you yourself are not secure there? ठीक है? So in my journey, I've seen that, networking with people and actually selling your capabilities through interactions. Interviews आजकल एक interaction बन चुके हैं. हमने recently अभी एक interview master class शुरू की है जिसके हम 2 sessions कर भी चुके हैं.
उसमें आप देखिए कि मैं बड़े टॉप टीयर एचआर, जो मेरे नजर में जो असल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो असल प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने आज तक अपनी सेल्फ ब्रांडिंग या सेल्फ मार्केटिंग नहीं की, वो आके यही बताते हैं कि यार जो लोग कॉन्वर्सेशंस पे आ गए हैं ना, हमारे लिए वो कैंडिडेट्स हैं। बिकॉज एक जेनरेशनल शिफ्ट तो हो रहा है ना, आप जेन जी को आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो ना एज फ्रेशर्स। तो यार ये बड़ी टेक इनेबल्ड, बड़ी डिजिटल कॉम है, ये आपके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करके आएगी। तो टिपिकल अबाउट योरसेल्फ वगैरह में रखा ना आपने इनको, तो ये इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर यू। और वो जो सवाल होता है कि आपने पिछले इतने सालों में इतनी जॉब चेंज की हैं, आप तो क्लियर ही नहीं है। और आई थिंक आपने एक पोस्ट पढ़ी है मेरी। देखिए मुझे रिसेंटली एक कॉल आई, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे रिसेंटली एक कॉल आई, तो रिक्रूटर ने पूछा कि मैं जी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सॉरी मैं जेंडर रिवील करूंगा, तो आपने पिछले 3 साल में 1 ईयर और 1 ईयर प्लस आपने 1 ईयर के अंदर अंदर आपने जॉब शिफ्ट की, क्यों? तो मैंने कहा जी पहली बात तो बेटा आप अगर उस 3 साल से पिछले 12 साल को देखें तो वो एवरेज जो है वो 1 से 3 साल पे चला जाएगा। तो ये बात यहीं चेंज हो जाती है, ठीक है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट माय शिफ्ट ऑफ जॉब्स, यू हैव टू लुक एट इट इन अ होलिस्टिक वे, नॉट जस्ट द लास्ट 3 years, ठीक है। देन ओके, इफ आई लुक एट योर प्रोफाइल, बिकॉज यू आर ऑल वाइडली अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, तो पिछले 6 सालों में 5 नौकरियां तो आपने भी बदली हैं। चलो मैं तो साल तक गया हूँ, आपने तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने ये किया है। तो मेरे और आप में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंस है फिर? तो यू नो डोंट गो सम अगेंस्ट समथिंग दैट यू नो you're preaching। आपकी अपनी जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, और इस चीज को, इस माइंडसेट को बड़ी चेंज करने की जरूरत है। बिकॉज देखिए आप बड़े मुख्तलिफ दुनिया में रह रहे हैं आजकल। कोविड ने आपको हिला दिया है। जहां हम कहते थे पाकिस्तान की इकोनॉमी सफर कर रही है, आज आधी से ज्यादा दुनिया की इकोनॉमी सफर कर रही है। और जब इकोनॉमी सफर करती है तो आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सफर करता है, बिकॉज ज्यादा तादाद तो जॉब करने वालों की है, ठीक है। तो आज आप ये देखो कि कंपनीज का अपना फ्यूचर हेजी होता है, स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटलिस्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वहां से फंड पुल आउट किया गई कंपनी, ठीक है। तो जब ये सारे फैक्टर्स आते हैं तो आपकी जॉब स्टेबिलिटी, यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर जॉब स्टेबिलिटी। हाउ कैन यू वर्क फॉर अ कंपनी? आज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कह रहे हो मैं क्लोज कर रही हूँ, हम पाकिस्तान से जा रहे हैं, आप क्या कहोगे? मैं करता रहूंगा काम यहाँ पे। ठीक है। सो ये जो बात आप कर रहे हैं, इट इज़ मोर अबाउट दी एवोल्यूशन, राइट? अब एचआर में ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन टच तो है और वो इवॉल्व भी हो रहा है। अब जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है और जिस तरफ सारी दुनिया जा रही है, एआई आ रहा है, इंटरव्यूज से पहले मॉक राउंड्स हो रहे हैं, एआई टेस्ट ले रहा है, और एचआर की जो एवोल्यूशन है, एचआर प्रोफेशनल्स खुद उसके लिए रेडी हैं? और क्या जिस तरह से एवोल्यूशन ग्लोबली आई है, लोगों का काम करने का तरीका भी चेंज हो रहा है और लोग जाहिर बात है स्विच भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो लोग भी इवॉल्व कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशंस और ख़ासतौर पे ये जो एचआर के कुछ क्वेश्चंस हैं ना, जो बड़े पेट क्वेश्चंस हैं कि आपके अंदर स्टेबिलिटी है या नहीं, आप ये मेरे ख्याल से पुराने सवाल आते हैं। अब जिस तरह से मार्केट इवॉल्व हो रही है, लोग इवॉल्व हो रहे हैं, एचआर प्रोफेशनल्स इन सम वे ऑर्गेनाइजेशनली इवॉल्व कर रहे हैं कि वो एआई टेस्ट लेके आ गए हैं, लेकिन एज प्रोफेशनल्स इवॉल्व नहीं कर रहे प्रोबेबली, वो अभी भी उसी माइंडसेट में है। बहुत अच्छी बात की आपने से। देखें प्रोफेशनल्स का इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखें one of the reasons why I chose to come to your podcast is because I know that the people who I'm talking to are professionals, right? If I'm talking to people जो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनका ही फायदा है, मेरा नहीं है। और अगर फायदा है तो लिसनर्स का कोई नहीं है। So what we're doing is something जिससे शायद कोई ना कोई वैल्यू ऐड ले ले, ठीक है। अब जो आपने बात की कि एवोल्यूशन हो रही है, ग्लोबली वो एवोल्यूशन हो रही है, एचआर में क्या उस एवोल्यूशन को यहाँ पे डिसाइफर किया जा रहा है या नहीं? दैट इज अ स्टडी टू बी हेल्ड। व्हाई? बिकॉज सी, इन्वेस्टमेंट इन एचआर विल ऑलवेज बी एन ओवरहेड, ठीक है। एज मच एज आप अपने आप को ब्रांड करके कह दो कि वी आर द लाइफ ब्लड, हर डिपार्टमेंट अपने आप को लाइफ ब्लड कहता है। मैं कहता हूँ मैं फाइनेंस में हूँ, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रॉफिट या लॉस में, तो आप कैसे ठीक होगे? आप मार्केटिंग में आप कहते हो जब तक हम नहीं है तुम सेल ही नहीं कर सकते। सेल कहता है मैं लाइफ ब्लड हूँ, ठीक है। तो हर कोई अपने आप को लाइफ ब्लड मानता है, एक डिबेट है। बट एचआर इज अ स्पेंड, इज एन ओवरहेड, क्योंकि जो लोग आपके लिए काम करने आ रहे हैं, अनलेस वो सेल्स आपके लिए नहीं ला रहे, तो वो एक ओवरहेड है।
आपने उनको सैलरीज देनी है, वो एक एक्सपेंस है, और उनको हायर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी आप ला रहे हो वो भी आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी आपका एक ओवरहेड है, ठीक है। तो किस लेवल तक आपको उस पर स्पेंड करना चाहिए, किस लेवल तक वो मिक्स जो है बिटवीन ह्यूमंस एंड टेक्नोलॉजी रह सकता है। लाइक द अदर डे आई सॉ अ वेरी यूनिक पोस्ट ऑन लिंक्डइन के somewhere in the world a CEO applied in his own company. Now a CEO of a company applying to his own, and this CEO is someone he had generously invested in ATS and all HR technology. His CV got rejected. You would question how can that happen? I saw that he fired HR. Yeah, he did. अब देखो जो उसके नीचे सवाल था ना वो बड़ा pertinent था कि it begs you to think कि यार what level of technology, or is technology even needed in HR? Because literally the word says human resource. It does not say AI driven human resource या technologically powered human resource. Human. मेरा भी Get Work Now कभी यही था कि यार जितनी टेक्नोलॉजी ले आओ, ह्यूमन ने बताना है मैंने इसको रखना है या नहीं। और अगर किसी AI ने बता भी दिया ना इसको रखना है, ह्यूमन का अगर मूड है नहीं रखने का, वो कहेगा मैंने नहीं रखना। तो फोकस कहाँ पे हुआ? ह्यूमन के ऊपर हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं एंड अगेन समथिंग आई हैव लर्नड इन माय जर्नी एज वेल कि सम कंपनीज आर वेरी गुड इन लर्निंग दिस, हेंस वो अपने आप को मॉडिफाई करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे आए कि उन्होंने कहा यार हमें लग रहा है कि हमें ना इंटरव्यू लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो हमारे पास एक ऐसी प्रोविजन भी है वेयर यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एज एन इंटरव्यूअर, राइट, बिकॉज वी आर पेइंग फॉर मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। सो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एज एन इंटरव्यूअर एज वेल एंड गेट टू लर्न कि यार हो क्या रहा है। So it's a process, yes, but I don't think Pakistani market is really evolving in that way, because वही मैंने आपको बात बताई ना कि शिफ्ट अगर उस तरफ होता तो आप आज देख रहे होते एक डिफरेंट किस्म की प्रमोशन। जब आपकी 90% लिंक्डइन पे HR की सेल्फ ब्रांडिंग है और वो मेनली उन कंपनीज से बिलोंग करते हैं जो स्टार्टअप्स हैं, और स्टार्टअप्स जैसे मैंने कहा कि वो बड़ा टीडियस होते हैं अपनी स्पेंडिंग में कि हम HR टेक में कितना स्पेंड करें, तो देन ये चीज आंसर इटसेल्फ है। और अगर हमारी मार्केट उस तरह इवॉल्व हो रही होती तो आज आपके लोगों के ना क्राइज बहुत कम होते। मोस्ट कह लें फेमस तरीन फीड जो आजकल लिंक्डइन पे चलती है वो है कि HRs कहते हैं कैंडिडेट्स हमें गोस्ट करते हैं, आते नहीं है इंटरव्यू का कह के। कैंडिडेट्स कहते हैं आप लोग वक्त पे बुला के टाइम नहीं देते। ये तो यार ये क्यों चलता आ रहा है? क्यों इस चीज को? ये कल्चरल प्रॉब्लम भी है, ये माइंडसेट का प्रॉब्लम भी है। तो लेट्स सी, आई कैन ओनली प्रे दैट वी कैन गेट देयर। अच्छा, आप लोग पाकिस्तानी आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वेस्टर्न्स में और मिडिल ईस्ट वगैरह में जॉब करने के लिए, तो क्या डिफरेंस है जॉब मार्केट का, और क्या कैसे अपने आप को प्लेस करें कि उनके लिए बड़ा इजी हायरिंग प्रोसेस हो जाए इन दैट कंट्री? देखिए, मैं वही बात करता हूँ कि गेटिंग हायर्ड इज सेकेंडरी। मेकिंग योरसेल्फ सूटेबल फॉर एनी रिक्रूटमेंट एट ऑल, दैट्स द एक्चुअल लर्निंग, ठीक है। अगर आपकी CV में मिस्टेक्स हैं, ATS कंप्लायंट नहीं है, इम्प्रेसिव नहीं है, इम्प्रेसिव भी छोड़े, वो आपको वो ही नहीं करती, क्या कहते हैं, इट डजंट रिफ्लेक्ट हु यू आर, ठीक है। पहला तो यहीं पे फेल है। फिर आप अपने आप को इंटरव्यू इंटरेक्शंस के लिए प्रिपेयर करें, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर ओवरसीज जॉब्स, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल हेडहंटर्स, इंटरनेशनल रिक्रूटर्स। सबसे पहला फॉल बैक आपका क्या होगा? आई एम डीपली सॉरी टू से दिस, बट कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने अपने रिसेंट लिंक्डइन पोस्ट में कुछ अनकन्वेंशनल तरीके बताए थे अपनी कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए, ठीक है, जिनमें नंबर 1 वाज के IELTS एक बड़ा जबरदस्त एग्जाम है। तो IELTS इस वक्त ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टू बी वन ऑफ द टॉप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट्स, ठीक है। उसका एक स्पीकिंग मॉड्यूल होता है। स्पीकिंग मॉड्यूल में क्या है कि 5 से 10 मिनट के लिए आपसे इसी तरह एक बंदा इंटरव्यू ले रहा होगा, ऐसा ही है। तो लोगों का अगर आप पाकिस्तान में एनालाइज करें तो सबसे बड़ा जो उनका प्रॉब्लम आता है वो स्पीकिंग के अंदर आता है। लेकिन ऑनलाइन देयर आर डजन्स ऑफ मॉक इंटरव्यूज एंड देयर आर डजन्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू टू गेट ट्रेन्ड ऑन दैट। इवेंचुअली आपका क्या ठीक हो रहा है? इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक हो रही है ना, उस गैप को फिल करें, ठीक है। उसके बाद बिफोर यू अप्लाई, मैं आज कहूंगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट गैप्स इन आवर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अ जॉब इज दैट दे डोंट इवन नो कि आर दे सूटेबल फॉर दैट जॉब और नॉट।
I have seen engineers apply for accounting positions. ऐसा ही है. I've seen HR apply for supply chain positions. कि जी I've worked with them. I've done a project with them. I had a college minor that had. पहले देखो तो सही कि क्या आप उस JD के साथ बैठते भी हो या नहीं. बस perks and benefits, location, company, दुबई खत्म. Apply करो. दुबई, मिडिल ठीक है. ईस्ट, ठक 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 ठक. Second लिंक्डइन पे इजी अप्लाई है ना. इजी अप्लाई पे मुझे तो लगता है पाकिस्तानियों का काम हो करते गया कि जाते हैं. पूरा दिन सिर्फ ठक ठक Easy ठक apply ठक करते इजी जाए. अप्लाई करते जाए. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यार फिर फर्ज करें मैं एक जॉब सीकर हूँ, आप एक इंटरनेशनल कंपनी में रिक्रूटर हो या HR के बंदे हो. मैंने अपने आप को देखा और मैंने सेल्फ असेस कर लिया कि मैं इस जॉब के लिए ठीक हूँ. मैंने अप्लाई कर दिया, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने जाके आपको एड रिक्वेस्ट भी भेज दी. नाउ यू एंड आई आर कनेक्टेड. Please, and this is my message to all headcount sitting over there looking for jobs, कि LinkedIn does not create a social connection of yourself with the employer or whoever you are connected with. And if you are connected on LinkedIn, तो अगले की कोई obligation नहीं है आपको favor करने की. Yeah. तो और अगर मैं आपको reach out कर रहा हूँ as a candidate, तो be very careful of the language and your choice of words. और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लिंक्डइन ने कहा है इन्होंने तो ठीक नहीं होना, हम टेम्पलेट मैसेजेस ही बना देते हैं. इसीलिए आज आप जाते हो तो लिंक्डइन कहता है इससे पहले आप कोई हरकत करें हम खुद मैसेज लिख के देते हैं, इट्स बीन ग्रेट कनेक्टिंग विद यू, हाउ यू बीन. ठीक है. तो अब आप वो देखो डजन्स वही आते हैं. तो उससे पहले मुझे क्या आते थे, सर जी, सर आर यू देयर, सर प्लीज कोई हेल्प कर दे, सर जी मैं हाय, सर प्लीज. अब गुस्सा आता है इस चीज पे कि देखो आपने यही अपनी डेस्परेशन शो कर दी. एक बड़ा अच्छा लेसन मुझे मेरे एक सीनियर ने दिया था. मैंने उनसे एक सवाल पूछा एंड अगेन देयर इज अ पोस्ट ऑफ इट ऑन लिंक्डइन. ये मेरा उनसे सवाल था और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ अ गुड इंटरव्यू. आप खुद भी नोटिस करो तो ये सवाल बड़ा कम पूछा जाता है बट एक्चुअली बड़ा ही जबरदस्त सवाल है कि यार मैं कैसे असेस करूं कि एक अच्छा इंटरव्यू कैसे हो, क्या है. Few things that professional told me and I tell everyone and about 80% of the times it's right. उन्होंने कहा सबसे पहले the length of time you spent in the interview. If it's anywhere above 10 to 15 minutes, those people have actually invested time in you. वरना इंटरनेशनल एक वो है स्टेटिस्टिक है कि पहले 7 मिनट के अंदर, जो कि अब कुछ लोग 4 मिनट भी कहते हैं, पता चल जाता है कि इंटरव्यूअर आपको आगे लेके चलेगा या नहीं. 4 मिनट इसके मतलब शुरू होते ही खत्म. तो आप 15 मिनट तक गए हो तो इट मीन्स कि यार समथिंग इज क्लिक्ड, यू नो, दोज पीपल हैव एक्चुअली अंडरस्टूड कि तुम क्या. सेकेंड इज कि have they actually told you some real problem about their company, कि यार अच्छा हमारे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे. ठीक है. थर्ड इज इफ they have gone down to the level of proper negotiation of salary, कि यार what are you taking 40, अच्छा you know can you come down to this, we have ये, वो आपसे एक actual proper negotiation कर रहे हैं. ठीक है. that is when they're actually thinking about procuring you as an asset. And last but not least, have they given an opportunity to you कि आप questions पूछो. और यहाँ पे हमारा बहुत कैंडिडेट जो है वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहता हूँ यार you just crapped all over it. कि सर कब तक पता चल सकता है, सर how did I do, सर next step क्या है. यार आजकल के इंटरव्यूज में प्लीज टेक इट एज अ लर्निंग कि सबसे अगर आपको किसी ने कह दिया ना कि सवाल है तो आप समझो आपके लिए ना गोल्डन बजर बज गया. जो टॉप सवाल मैं पूछता हूँ, आई वुड लाइक पीपल टू टेक अ नोट ऑफ दीज, कि जो टॉप सवाल मैं पूछता हूँ दे इंक्लूड एंड स्पेशली फॉर द फाइनेंस पीपल कि यार आपके व्हाट आर योर ERP सिस्टम्स, व्हाट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस डू यू हैव, आपके ERPs कौन से लगे हुए हैं. बिकॉज वहां से ना एक डिबेट शुरू होती है. हार्डली एनी कंपनी इज ऑप्टिमाइज्ड इन टेक्नोलॉजी. कहीं ना कहीं वो बेहतरी ला ही रहे होते हैं कि यार वी आर थिंकिंग अबाउट दैट. Do you have any experience in that? आप कहते हो हाँ यार I do, and that conversation has actually changed interviews altogether. और आपको एक लेवरेज मिल जाता है कि आप अपनी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसमें इनपुट कर सकें. वो आपको वैल्यू बेनिफिट दे देता है कि बता सकते हो कि आई एम टेक्निकल एक्सपर्ट एज वेल. तो उससे उनको ज्यादा होता है कि यार इसको ये इन्फॉर्मेशन भी एक एडेड स्किल सेट है, एडेड स्किल सेट. और आप सेकंड सवाल में पूछता हूँ कि यार व्हाट इज माय करियर प्रोग्रेशन. सो if I am reporting to say a manager, who's that manager reporting to? So I want to see, जो आप पूछ रहे हो कि how can we judge your retention, how can we, तो retention इसी चीज से मुझे पता चलेगी ना कि मेरा आगे क्या है. मैं मैनेजर ही रहूंगा, मैं मैनेजर से आगे कभी CMO भी बनूंगा,
तो वो अगर 5-6 साल की जर्नी है और मेरे पास चैलेंज है तो मुझे नजर आ गया मेरा, ठीक है। तीसरा सवाल मैं ये पूछता हूँ कि आपका जो आज तक बड़ा रेलेवेंट है कि आपके इस वक्त इन योर बिजनेस व्हाट आर योर टॉप 2 or 3 risks ओवरऑल, जेनेरिक उसमें ले जाए आप। क्या आपका कंपटीशन इज द रिस्क, ओवरहेड्स आर योर रिस्क, सेल्स इज योर रिस्क, इकोनॉमिक चैलेंजेस आर योर रिस्क्स, एंड इज देयर एनी बॉडी और इज देयर एनी मैकेनिज्म टू टेक केयर ऑफ दैट? अब क्या हो रहा है कि आप इन तीनों सवालों से देखो कि आप इंटरव्यू बहुत पीछे छोड़ा हो, अब एक और कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है। आप अबाउट द कंपनी जरूर पूछो, लेकिन अबाउट द कंपनी भी आजकल खत्म हो चुका है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यार with the amount of information available on LinkedIn, Glassdoor, websites, social media, you should be telling me more about the company. Another thing that I do, मैं takeaways दे रहा हूँ लोगों को जो interviews देना चाहें, कि मैं companies की marketing strategies में बड़ा involved होता हूँ, because मैंने अपनी startup की marketing खुद की सारी. I even took digital marketing certifications for it. तो मैं marketing strategies, जो stunts जो होते हैं आप लोगों के language में, उनको मैं बड़ा वो करता हूँ. And I tell those people कि यार I recently saw that campaign of yours, it's really good. मतलब वो क्या है, appreciative tone में, तो how do you take it as a... These are things, these are ways in which you turn your monotone interview into an actual dialogue. और आप you actually end up with most probably an offer. काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है आपका, जो आपकी प्रोफाइल है, फाइनेंस का भी बैकग्राउंड है, स्टार्टअप भी कर रहे हैं। कैसा हेल्प करता है ये, और ये कॉम्बिनेशन की वजह से आपको कितना फ़ायदा हुआ? बिकॉज यू कुड रन योर ओन फाइनेंसेस, राइट? हाँ, बहुत ज़्यादा है। देखिए, अपना जब स्टार्टअप बनाया तो आज आप लोग भी अगर स्टार्टअप जर्नी पे जाते हैं तो व्हेन यू लुक फॉर पार्टनर्स, व्हेन यू लुक फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट, व्हेन यू लुक फॉर फंडिंग, तो हर बिजनेस को समझाने के 2 तरीके होते हैं। एक थियोरेटिकल होता है, नंबर्स, जिसमें आप पिच डेक्स बनाते हैं सारा। द अदर इज नंबर्स. So numbers actually, for me and a lot of other people who are mainly investors, numbers do the talking a lot more clearly. Yeah. Because if you can sell your idea, then the translation needs to be reflected in the numbers. So numbers include what you are earning, what you need to expend to make that earning, what you are retaining as a profit, and how you can divide that profit in a certain percentage with your investors. ठीक है? Once you are able to give that understanding, तो आपका आइडिया या कोई भी काम आपके लिए आसान हो जाता है। मैंने because I always wanted to sort of step out of my comfort zone, मैं एक typical number cruncher नहीं बना। Very early in my career I realized कि यार देखो, if I want to become a contemporary CFO या एक वो, तो I'll just be sitting behind a desk, या मेरी जो भी lifestyle होगी, people are only going to be talking to me about numbers. I don't want to do that. I want to transition myself into जो अब organically वैसे ही हमारे पाकिस्तान के और दुनिया भर के जो C-level finance के लोग हैं वो transition कर गए हैं। I want to keep myself abreast with technology. I want to be someone who can actually create business opportunities for companies. ठीक है? Yeah, as opposed to only telling my management कि यार we made a profit or a loss. I'd like to discuss how we got to that profit, how we can increase that profit, sustain that profit, how we can cut down on losses. So once you start talking in that language, आपका your scope expands a lot. Which is why in my career I've also served in the role of a COO as well. I've also served companies for business development as well. I've created significant business for companies as well, and even right now as a consultant to many companies in Pakistan and around the world, I consult them on things which are not just contemporary accounting and finance, because वहाँ भी technology का बहुत ज़्यादा एक एडवांसमेंट हो चुकी है। ERPs आ गए हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, दे डू अ लॉट ऑफ दैट वर्क, बट द ट्रांसलेशन ऑफ दोज नंबर्स एंड द डेरिवेशन ऑफ दोज नंबर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा कनेक्ट रहा है। मैं किसी को अगर रिक्रूट भी करता हूँ, फाइनेंस तो चलो अपनी डोमेन है, लेकिन मेरे लिए ये जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं वो ये आती है कि यार वी नीड हेड लेवल फाइनेंस पर्सन, वी नीड अ CFO, वी नीड डायरेक्टर फाइनेंस। ठीक है? तो मेरे लिए recruiting becomes very easy because I know the kind of personality this guy is looking for, right? I know the metrics जिसके ऊपर इसको assess करना है, और अपना प्लेटफॉर्म है गेटवर्क नाउ का, तो मैं using my recruiters and then my own self, I'm able to give a very good evaluation. तो that evaluation stands out. हमने एक recruitment close की, तो
वो बंदा वो हैरान हो गया कि यार आपने मतलब सीवीज नहीं भेजी मुझे, लेकिन आपने एक स्कोर कार्ड भेजा है काफी बड़ा सा, उसमें आपने ये हाईलाइट किए हुए कि ये 3 है. तो इफ आई ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड इफ आई ट्रस्ट योर इवैल्यूएशन, तो आई विल जस्ट कॉल दीज 3 पीपल. ठीक है, मुझे इन्हीं तीनों की आप सीवीज दें जो 20 में से आपने किए, और मैं इनसे बात करता हूँ. ऑल 3 ऑफ देम एंडेड अप गेटिंग हायर्ड. अच्छा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हाँ. रिक्रूटर कंपनीज हायर क्यों करती हैं? वो खुद भी तो कर सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट का डायरेक्टली. अच्छा देखिए, अनफॉर्चुनेटली हेड हंटिंग में और रिक्रूटिंग में ना एक बड़ा आई सी अ डिफरेंस. ठीक है, सो फॉर मी हेड हंटिंग इज एक्चुअली गोइंग डाउन इनटू द मोर पर्सनल निमोनिक्स ऑफ द कैंडिडेट एंड यू नो रीचिंग आउट और पर्सनली उससे एक रैपर डेवलप करके देखना कि इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं. लाइक आई हैव वंस बीन अप्रोच्ड बाय अ हेड हंटर एंड इज अ वेरी रिनाउंड हेड हंटर. When I met him for the first time ना, मुझे मेरी CV पे printed words कम नजर आ रहे थे, उनके पेन मार्क्स ज्यादा नजर आ रहे थे. So it actually seemed like he had spent a lot of time discussing my CV with me, and then he asked me to change my CV, create actually a version of that CV for that client. Then he made sure I get an interview, and that interview actually turned into an offer. They didn't work out because we couldn't work out the mechanics behind it. But yes, I first-hand witnessed कि यार एक कंटेम्प्रेरी रिक्रूटमेंट में और एक हेडहंटिंग में क्या फर्क होता है. ठीक है, तो आपका जो सवाल के लोगों ने रखे क्यों होते हैं, देखिए पहले एक अगर आप एचआर को ब्रेक डाउन करें, अगेन नॉट स्पीकिंग एज नॉट एन एकेडमिकली क्वालिफाइड एचआर पर्सन, बट एचआर की जो सब डोमेन्स हैं उसमें आपका क्या कुछ आ जाता है. आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आ जाता है, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स आ जाता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ जाता है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर आपकी ट्रेनिंग आ जाती है और ट्रेनिंग के बाद आपके अप्रेजल्स वगैरह की 2 सब कैटेगरीज ब्रॉडली एक एचआर डिपार्टमेंट के अंदर यही चीजें होती हैं. जब आप एक किसी कंपनी का बड़ा स्ट्रक्चर्ड एचआर डिपार्टमेंट देखेंगे तो उसमें ये डिविजन्स लाजमी होंगी. अब एम्प्लॉय की जर्नी शुरू होती है रिक्रूटमेंट से, लिहाजा गिवन द नंबर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कैंडिडेट्स दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ, उनको अपने नीचे डेलीगेशंस या लोग रखने पड़ते हैं जो उस रिक्रूटमेंट को हैंडल करें. और वो वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है और उसका जो है वो कह लें डिस्कनेक्ट इतना ज्यादा होता है, इसी वजह से एटीएस सॉफ्टवेयर इवॉल्व किए. तो दैट इज वेयर द होल जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम. व्हेन द रिक्रूटमेंट थ्रू द रिक्रूटमेंट द पर्सन कम्स इन, फिर उसकी ऑनबोर्डिंग होती है, ऑनबोर्डिंग के बाद वो जो है वो प्रॉपर एक एम्प्लॉय बन जाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अप्रेजल, सैलरीज वगैरह. सो ऑल दैट हैपेंस. इट्स अ बिग डिपार्टमेंट. हम अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सॉरी लिंक्डइन एंड ऑल हम देखते हैं कि खाली एचआर 80% रिक्रूटमेंट ही होता है. ऐसा नहीं है. एक एरिया जो एचआर का बहुत कम में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम टच होते हुए देखता हूँ, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और आपकी जो रिवॉर्ड्स होते हैं उसमें एक बड़ा डायरेक्ट कोरिलेशन है. वो ये है कि आपका या तो एक इंटरनल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, या आपका जो एचआर सॉफ्टवेयर आपने खरीदा हुआ है या बनाया हुआ है, दैट शुड बी केपेबल इनफ टू टेल यू कि यार मेरे एम्प्लॉइज ने जो गोल अपने लिए सेट किए थे, आप लोग अच्छी कंपनी से हो, आप लोग इस साइकिल से गुजरे होगे कि आपने अपने गोल्स 12 महीने के सेट किए, 6 महीने बाद एक बाय एनुअल रिव्यू होता है और उनकी अलाइनमेंट होती है. ठीक है, तो आपने यू एंड योर कंपनी नाउ हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन योर गोल्स फॉर द नेक्स्ट 12 months. ठीक है, ओके. अब आप एट द एंड ऑफ दोज 12 months, बिफोर यू एंड योर मैनेजर गेट इनटू अ डिस्कशन, the system should be capable to say कि यार this guy has met his targets over here, fallen short of his targets over here, and gone beyond his targets over here. लिहाजा as per your own reward mechanism, इसका जो score आया है, he either deserves an increment at the bracket of this, he deserves a performance bonus, और अगर नहीं, he needs to go to retraining. और यहां से फिर आपका एक वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वो आइडेंटिफाई करता है कि किस लेवल की ट्रेनिंग की इसको जरूरत है. ठीक है, ये एरिया इतना क्रिटिकल है, इतना क्रिटिकल है. अभी आपकी जो ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं वो आउटसोर्स ट्रेनिंग्स है, जहां मार्केट से आप ट्रेनर उठाते हो और आप बुला लेते हो और वो लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखा देता है. नहीं, वो ट्रेनिंग जरूरी बहुत है, लेकिन एक्चुअल ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए बड़ा जरूरी है कि कोई मैकेनिज्म एग्जिस्ट करे. जो एक मेरा अक्सर जो या आजकल की जनरेशन के इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा है, मेरे से जिनकी कॉन्वर्सेशन हुई है ना, मैं कहता हूँ आपने कभी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की है कंपनी में? तो यहीं से पता चल जाता है कि आपका फोकस किस तरफ है. हमारा फोकस, बिकॉज देखें रिक्रूटमेंट जो है ना, वो ये इन्फ्लुएंसिंग और ये
को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जब आप जॉब पोस्ट डालते हो तो लोग आते हैं, जब आप किसी को हायर करते हो तो आपको बोस्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन जब आप अपनी कंपनी में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप कुछ ज्यादा प्रमोट नहीं कर सकते। आप क्या कहोगे, वही जो लोग ऑलरेडी कंपनी में हैं, हमने उनको ट्रेन किया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, हमने उनको रिवॉर्ड किया, तो देयर इज नॉट मच टू बोस्ट अबाउट। अब क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में एचआर डिपार्टमेंट्स का और इन सारी चीजों का? फ्यूचर मैं बड़ा रियलिस्टिकली बताऊं कि अगर हम इसी पाथ पे चलते रहे तो बड़ी जल्दी जो है वो लोग एचआर डिपार्टमेंट ज्वाइन ही इसलिए करेंगे कि इंस्टेंटली फेम मिल जाता है। जिनको फेम का शौक है ना, जिनको ये है कि यार हम विल बी फेमस। एचआर डिपार्टमेंट फेम कैसे मिल सकता है आपको? देखें, आप वही बात है कि जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं वहां पे कॉन्स्टेंटली मेरी, अब आई हैव क्लोज टू अबाउट 30,000 फॉलोअर्स। मैं अगर अपनी डेली फीड को ब्रेक डाउन करता हूं तो 70% जो है वो यही पेड प्रमोशन पेजेस हैं, जो कोई 15-20 लोगों का एक ग्रुप है, उनको प्रमोट किए जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ जितना उन्होंने उनके बारे में लिखा हुआ है। इफ आई वांट फेम ना, आई लिटरली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे उन पेड प्रमोशन पेजेस के ऊपर जाना है, कहना है यार आई विल अप योर प्राइस, मेरे बारे में भी ये चीजें लिख दो। I don't care अगर मैंने ये किया हुआ या नहीं किया हुआ। आपके लिए पैसा है, मेरे लिए यार किसने मुझसे पूछना है कि सच है या झूठ है, किसने मेरी कंपनी से वेरीफाई करना है, ठीक है? तो आप कर दो। तो ये जो एक फेम का तरीका मिल गया, अच्छा इससे दो चीजें बुरी हो रही है। एक तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद फेम, बट फेम शुड बी अर्नड। स्ट्रेस नहीं, अगर मैंने अपनी तारीफ करवानी है, मैं ये नहीं कहूंगा यार मुदस्सिर मेरी तारीफ करो, ये लो 5,000 तारीफ करो मेरी। तारीफ वो होगी कि अगर मैं यहाँ नहीं भी बैठा हुआ तो you'll say यार Ali Khalid is a knowledgeable guy, he's a good guy. In my absence you'll say that, others will say that. सर आपने रेट बड़ा कम लगाया, 5,000 थोड़े से ज्यादा बढ़ा दे। चले मैं रेट वही रखता हूँ, मैं करेंसी चेंज कर ये बात अच्छी की। वो अब इससे दूसरी चीज जो गलत हो रही है ना, वो ये कि यार एक्चुअल रिनाउंड जो एचआर, जो एक्चुअल प्रोफेशनल्स हैं, अगेन आई विश आई कुड नेम देम, कि यार वो लोग हैं जिनके साथ जब मैं बैठता हूँ ना, उनमें से आई एम प्राउड कि सम ऑफ देम आर विद मी इन गेट वर्क नाउ एज वेल। यार आप यकीन करो, एवरी मीटिंग विद देम इज अ प्लेजर इन इट्स ओन। They talk to you for 10 minutes and you understand, yaar, this is someone who has grown in this career and he has understood what actual human connect means. वो इमोशनल इंटेलिजेंस और IQ और EQ के को अबूर कर चुके हैं उन चीजों को। एंड दोज आर पीपल जिनको मैं कहता हूं कि अगर ये कहे ना कि यार आई कैन सी अ पर्सन एंड टेल कि ही इज केपेबल ऑफ बीइंग हायर्ड और नॉट, मैं कहूंगा यार आई बिलीव हिम बिकॉज़ ही हैज प्रूवन दैट इन द मार्केट। तो अर्न दैट फेम अल्लाह ताला देने वाला है, आप जितना पे कर लो, अनलेस अल्लाह ताला नहीं चाहेगा वो फेम नहीं मिलेगा आपको। So how do you find that sort of a profile? Because ज़ाहिर बात है स्टार्टअप्स का कल्चर भी चल रहा है पाकिस्तान में, there's a lot of startups and people are doing great work on different fields. So everybody wants that great mind onboarded with them, or equity लोग dilute करते हैं for great minds and all that. But how do they find them? Because ज़ाहिरी बात है मार्केट तो उन्हीं लोगों की हो रही है जो लोग मार्केटिंग करा रहे हैं अपनी। देखिए, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इफ आई एम अ स्टार्टअप फाउंडर, अ टेक स्टार्टअप फाउंडर, ज्यादा से ज्यादा टेक स्टार्टअप्स ही, आई विल ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रियलाइज के यार नाउ आई नीड ह्यूमन रिसोर्स। आइडिया सेल हो गया है, ठीक है, एमवी स्टेज से गुजर चुका है, अब मुझे इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए बंदे लाने। दिस इज व्हाई माय कंपनी, फर्स्टली वी पार्टनर्ड विद कोवर्किंग स्पेसेस। हम कोवर्किंग स्पेसेस के पास गए और हमने कहा कि यार वील बिकम योर एचआर बिजनेस पार्टनर्स, बिकॉज यहाँ सारे स्टार्टअप फाउंडर्स बैठे हुए हैं, व्हाटएवर हेडकाउंट नीड्स दे हैव, टेल देम टू कम टू अस, वी आर गोइंग टू रिक्रूट पीपल फॉर देम। For me to answer your question, you will only find the right person if you make them go through a comprehensive round of assessment. A CV is not an assessment. Rounds of interviews are assessment. And those assessments should be tailored for that person. So your HR interaction is generic, right? हाँ, आपने वही जो हम बात कर रहे थे कि कॉन्वर्सेशनल रखो, ठीक रखो, अबाउट योर सेल्फ वगैरह नहीं, लेकिन एक तो जो आप बंदा हायर कर रहे हो वो एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग ठीक तरह से करे कि यार व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एम आई लुकिंग फॉर।
इसके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, इसके प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि अपनी हायरिंग को ना बिल्कुल फ्री ऑफ रेफरल्स कर दें, नॉट इन द सेंस कि रेफरल इज अ बैड थिंग, बट मेक श्योर दैट यू मेक दैट रेफरल गो थ्रू द सेम प्रोसेस एंड ही और शी इज नॉट गिवन एनी अनड्यू बेनिफिट कि किसी डायरेक्टर का भाई, किसी उसका वो, उसको जो है ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाए। मेक श्योर दैट दे गो थ्रू द सेम रिगरस राउंड ऑफ इंटरव्यूज एंड देन स्टडी दोज इवैल्यूएशंस। मेरे लिए हमारे एक्सपीरियंस में जो सबसे ज्यादा जरूरी इवैल्यूएशन होती थी वो सब्जेक्ट मैटर की होती थी। I'll share an incident here that when we started Get Work Now, the COVID hit us and we went into whether we liked it or not, we went into a work from home mode. Hence हमारे सारे interviews simulated हो गए online. हालांकि मेरा विजन ये था कि इस तरह का मैं एक इंटरव्यू सिमुलेशन रूम बनाऊं जहाँ प्रॉपर एक ऑफिस का एनवायरनमेंट हो और वो बंदा आए और उसको एक ऑफिस का एनवायरनमेंट हिट करे, ठीक है, which is still the goal. तो हमें एक बैंकर ने अप्रोच किया, a retired banker. Sorry. This guy had spent about 20 to 25 years in the banking industry. Now, you're talking about a seasoned professional here. Veteran से आप बात कर रहे हो, ठीक है? He had retired and he said, "Yeah, I have an opportunity from an overseas bank, but 20-25 years, I've forgotten how to give interviews. So, yeah, your service, I like it. I want to go through an interview." हमने तो कहा जबरदस्त है यार, अच्छी बात है. But the problem we faced was who's going to interview him? Who interviews a 25-year veteran banker? So then through our network, we reached out and we got a banker who had a 40-year experience. Okay? And we actually had to get a psychometric assessment specialist to sit in that interview. Yeah, I still have the recording. It was at par brilliance. It was a 1 hour 25-minute interview. हमारा तो आधी से ज्यादा बैंकिंग तो उधर से गुजर रही थी. But we were sitting there and the psychometric evaluation came bigger than the actual interview evaluation, जिसमें stress levels बताए उसने जो डॉक्टर साहब थी, और जो इंटरव्यू evaluator था उसने actually उस जॉब से रिलेटेड उसको चीजें बताई कि यार this is what you should do to brush up, this is where you're good, this is where you lack. Now that person got that job with the overseas bank and he met us. He took my entire team out. He said, "यार कमाल कर दिया आप लोगों ने. I mean, the person that you made me talk to is one of my mentors. I haven't met him, but I've followed him, and to be able to talk to him was an honor in its own, and to be able to learn from him." तो imagine करें कि इस interaction से आप क्या कुछ बदल सकते हैं. So for me, the sooner we realize कि यार आप लोगों ने अपने इंटरव्यू प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी ब्रांडिंग से निकल के अपने ऊपर ऐसे काम करना है कि आप इवैल्यूएशन कर सको कैंडिडेट की. कभी भी मैं आज भी यार कहता हूँ दरअसल कि शायद मेरे में बहुत ज्यादा कह लें लैकिंग्स हैं किसी को इंटरव्यू करने के लिए, वरना तो मैं अकेला ही चला लेता. ये मुझे आइडिया आया था ना, मैं क्यों अपने साथ 3-4 लोगों को लेके आया और इतना बड़ा एक पैनल अपने साथ किया, बिकॉज आई नो आई कांट. मैं तो मेरे से अगर कोई सीनियर लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई होता है तो मैं किसी और को ले आता हूँ इंटरव्यू लेने के लिए कि यार मेरे से कोई वो ना रह जाए. सो अप योर गेम इन दैट वे. So you build a whole profile of interviewers. Yeah. So if you go to our website, you'll see how many panel interviewers we have, and here's something to be proud of. They never asked me, or I never pitched paying them anything for that. They loved the idea. So, do you charge for a mock-up interview? Yes, we do. It's a very, I think our average price for the entire thing is 3,500 to 4,000 rupees. अब आप imagine करो कि अगर मैं आपको कहूँ कि if you're coming fresh out of an interview, all you need to do is invest almost about less than 5,000 rupees. And I'm not guaranteeing you, but your chances of making it to a job becomes 60-70% higher. It's a complete practice. It's a practice. ठीक है? तो would you invest that money or not? If you're a serious job seeker, you would. So, which is why we wanted universities to collaborate with us and say कि यार, let them go through us. Give us your top 50 candidates. हम उनको actual industry experts के साथ mock interview कराते हैं. यही mock interview और हम लोग इनको रेफर करेंगे आगे. अब अगर किसी seasoned professional ने उसको रेफर किया है तो उसके इंटरव्यू की कॉल की चांसेस भी बढ़ गए, और जब वो प्रैक्टिस से जा रहा है
तो उसको जॉब हिट करने के चांसेस भी बढ़ गए. तो आप मॉक इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके पब्लिक करते हैं? यार वी वांटेड टू, ठीक है, बट we got a lot of reservations from the interviewees themselves. Because you know what, aksar awqat it becomes a little embarrassing as well. You know, when you're pointing out flaws and problems, when you're jaise ki I would love to do on a really good platform like yours as well, ki how a good interview looks like. What good marketing questions look like, what good accounting questions look like. Even wo bahut badi learning hai, but we didn't go that direction. Abhi we don't. Abhi, until and unless I'm sure कि you know we're on the right path of delivering what we wanted to, I am not thinking on that line. And आपने बात की तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक matter of pride ये था कि every person who I spoke to, now these are people who are director marketing, director supply chain, director trade, sales heads from good companies. यार wonderful idea. अच्छा यार, we're not paying anything for it. Doesn't matter, man. We'll do it. Doesn't matter. Why? Because they've been through the same journey. Yeah. And they see where in whatever company, role, location, domain they are, वो challenge भी यही देखते हैं कि यार हमें भी बंदा चाहिए होता ना, तो this is exactly the problem that we face. So for me that is, उससे बड़ी validation कोई नहीं है मेरे लिए कि the idea is just superb. तो आइडिया आपका बेसिकली इतना बड़ा था कि उस आइडिया पे रेजोनेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा आ गए, और वो लोग क्योंकि ज़्यादा आए तो इसीलिए आपको एक स्केल मिल गया. सो यू नो, जैसा कि मैंने कहा कि आई हैड द आइडिया, मुझे पहले तो वैलिडेशन चाहिए थी कि यार मैं सही सोच रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि ये नॉक ऑफ हो जाए. तो आई फर्स्टली स्पोक टू पीपल जो HR डोमेन से ही हैं. उन्होंने कहा यार वाकई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, whatever टेक्नोलॉजी, whatever you can, आप रिक्रूटर्स रख लो, पूरा डिपार्टमेंट आप बना लो, टेक्नोलॉजी डाल लो, जब बंदा सामने आता है यार तो बहुत बड़ा गैप होता है. So that's where I started thinking कि हाँ यार it's you know I'm on the right track. Then I started talking to people जो again senior to me, very professional and who come from other domains. वो भी ये कहते हैं यार हमने भी जब अपनी हायरिंग्स की हैं तो प्रॉब्लम यही आता है कि यार HR से CVs रेलेवेंट नहीं आती, जब रेलेवेंट आती है तो वो इंटरव्यू सही नहीं देते, तो गैप तो कहीं ना कहीं है. So when I had at least 10 or 12 very senior people telling me that you are right and we will voluntarily do this for you. And then we had those interviews conducted, recorded, analyzed, and we saw कि यार वाकई ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ा है. और अब आज नसर में स्टेज पे हूँ कि देखो ये सिर्फ जॉब की बात नहीं है. आप देखें टेक्निकल स्किल्स जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है वहाँ पे भी इंटरव्यू चलता है. जो लोग IELTS देने जाते हैं उनके लिए स्पीकिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है, हार्डली कोई है. वी कैन हेल्प देम इन दैट. जो लोग आपके एम्बेसी के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, यानी आपने लाइफ में कभी भी प्रोफेशनली या एकेडमिकली एस्केलेट करना है, ऊपर जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक इंटरव्यू टाइप इंटरेक्शन में आना ही होगा. और उसके लिए सिर्फ आपकी सब्जेक्ट मैटर, स्किल्स मैटर नहीं करती. यू योरसेल्फ एज अ पर्सन हैव टू चेंज. इन अ नटशेल मैं ये कहूंगा कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स आज अगर अपने आप को प्रॉपरली कंपनीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा और कंपनीज वो ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं उठा पा रही, तो देयर इज अ डिफरेंस इन दोज पीपल बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दोज इंटरव्यूज. कंपनी से तो हायर करना है, उन्होंने अपने एंड पे सिर्फ ये कहना है यार हमारा बजट है, हमें लोग चाहिए, ठीक है. ये गैप शुरू होता है यूनिवर्सिटी से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, जहां पे उनको ट्रेन करना चाहिए उन कैंडिडेट्स को एक्चुअल इंटरव्यू एनवायरनमेंट्स के. दे कैन मेक देयर CVs, दे कैन डू देयर यू नो नेटवर्किंग एंड हेड हंटिंग. जब आप उन्हें यही नहीं बताओगे कि यार आगे इंटरव्यूअर कुछ पूछेगा तो हमने ऐसे जवाब देना है, और उनको वो जायका तो चखाओ, पहले बताओ तो सही कि यार अगर होगा, आप जो समझते हो कि यार एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू है आपने दिया है, एक्चुअली वो अच्छा नहीं है. मेरा जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हम एक यूनिवर्सिटी में गए, उन्होंने हमारे साथ हमें टॉप 10 कैंडिडेट्स दिए, टॉप 10, या उन्होंने कहा जी हम 10 लोगों ने वॉलंटरली यू नो सिलेक्ट किया आपकी इस चीज में आने के लिए. यार आई किड यू नॉट, द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड कैंडिडेट वाज कि यार आप मुझे जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बताओ अपने बारे में. सर हम लोग ना मलिक हैं. मलकरी आ गए. ये MBA की कैंडिडेट है, MBA फाइनल ईयर का, और मैंने ना अपने पैनल को देखा इधर, उन्होंने मुझे देखा, वो हम प्रोफेशनल्स हैं. वो कह सर वो मुझे बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यार तू ही जवाब दे इस बात का. क्योंकि अगर ये किसी कंपनी में होता
तो हम कहते हैं कि मलिक साहब वो दरवाजा है फिर हाँ। उधर जाओ, इज्जत माम मलिक साहब वो ठीक दरवाजा है। तो आप मतलब आपकी आइस ब्रेकिंग ही नहीं होती ना, आप आपके पहले 2 मिनट में आप ऐसी फनकारी मार जाते, कहते हो यार ये कैसी बात कर दी है तुमने भाई। तो यू नो इट्स अ टीडियस प्रोसेस। फिर आप अपने बारे में समझाना सीख जाओ। तो मैं आपको दूसरी मिसाल दूं कि आई वंस इंटरव्यूड अ कैंडिडेट हु हैड अ मास्टर्स इन सप्लाई चेन एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन कि यार मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिफाइन कर दो। For 5 minutes he couldn't get there. We're talking to someone who has spent 5-6 years, 6 years plus studying supply chain and cannot even tell me what the definition of that subject is. ये वही हमारे लिए वही बात हुई, किसी अकाउंटेंट से पूछो यार डेबिट क्रेडिट आता है और आपको नहीं सर। तो यू नो ये चीजें एट द एकेडमिक लेवल they need to be really polished. Coming up to LinkedIn की क्योंकि बहुत ज्यादा बात हुई, at this place candidates need to realize कि ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली किस चीज के लिए, ये सेल्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं है, उसके लिए टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है। इस पोल्यूशन को खत्म करने की जरूरत है। HR को जो मॉडर्न डे HR बनता जा रहा है, नॉट मैं जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बिकॉज HR में देयर आर पीपल जो मेरे भी मेंटोर्स हैं, ठीक है, और वो उनकी मैंने आज तक जैसा कि मैंने कहा I've never seen them brand themselves because they don't need to, ठीक है। तो ये जो सेल्फ ब्रांडिंग है इस यू नो हेलुसिनेशन से बाहर आए, और क्योंकि आपकी इस चीज से सिर्फ आपको फायदा हो रहा है, जॉब सीकर्स को नहीं हो रहा। एवरीबडी कैन सी राइट नाउ मेरी पोस्ट पे वायरलिटी क्यों है, बिकॉज एवरीबडी कैन सी कि यार ये कम से कम एक बात तो ठीक कह रहा है कि सब कुछ AI ड्रिवन है और पेड है। तो फायदा किसको दे रहे हैं आप, जब आप खुद ही केपेबल नहीं है वो काम करने के, तो फायदा किसको दे रहे हैं? चैट GPT ने हायर करना है आपके लिए? इमेजिन, मैं इन लोगों से सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इमेजिन करें आज ऐसी सिचुएशन जहां आप हैं और आपके पास चैट GPT नहीं है। ये मतलब वी आर गोइंग टू दैट पॉइंट कि आप ऊपर भी अगर आप रोजे क़यामत भी जब खड़े होंगे ना और पूछा जाएगा क्या किया सर, एक सेकंड, काइंडली टेल गॉड इन अ गुड वे व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, वो कहेगा वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस that you are tired and you have done this many गुनाहs और ये तो मतलब आप थोड़ा सा ना अपने आप को रियल उसकी तरफ लेके आए। When you realize कि यार आप अभी उस लेवल पे नहीं है, तब आप अपने आप पे काम करना शुरू करेंगे। आप अपने आप पे काम करना शुरू करेंगे तो इमीडिएटली वो गैप एकेडमिक्स का और कॉर्पोरेट का काफी हद तक खत्म हो जाएगा। एंड लास्टली के come to our platform, get yourself registered at Get Work Now. Reach out to me via LinkedIn, direct message करें. Let us take you through that journey. Let us tell you कि यार actually how an interview training can change your life altogether. हमने तो देखी है सक्सेस स्टोरीज, why don't you go through that as well? बाकी सब चीजों का टूल आपके लिए अवेलेबल है। आप एक एक्चुअल इंटरव्यूअर के सामने बैठे एक एक्चुअल जॉब से पहले, एंड देन यू विल नो वेयर यू रियली आर। आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन versus where you really are, they're two different things. So thank you very much guys for having me here यार। Thank you very much। बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, ऐसी चीजें सुनने को मिली जो जिंदगी में पहली दफा आई थिंक बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, और काफी चीजें पता चला कि बैक एंड क्या, फ्रंट एंड तो हम इंटरव्यू ही देने जाते हैं, बट बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, उसके पीछे क्या है, क्या फिलॉसफी है, क्या। I've said it before, I'll say it again कि I've been invited many times. The reason why I feel happy and proud to come to you guys is because I'm talking to a couple of very educated people who have worked their way to where they are. Thank you. वो assume नहीं कर रहे कि हम बन चुके हैं ये। In no podcast of yours or nowhere have I seen unnecessary branding of your platform. It's just the two of you wanting to have good conversations with people, whether or not I come in that category or not, but you're बहुत अच्छी बात आपने मुदस्सिर ने की कि थ्रू दिस इंटरेक्शन एंड अदर इंटरेक्शंस पीपल विल ट्राई टू सीक वैल्यू। वैल्यू नहीं है किसी कॉन्वर्सेशन में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एंड एन ऑनर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों ने इस लंबी कन्वर्सेशन से वैल्यू ड्राइव की है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वी वुड लाइक टू नो आप लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से हमारी कन्वर्सेशंस इम्पैक्ट ला रही हैं, और ये हमें भी हेल्प करता है ताकि हम और ज़्यादा इम्पैक्टफुल कन्वर्सेशंस करें। अगर आप किसी गेस्ट से या किसी टॉपिक पे हमारी डिस्कशन चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वी विल ट्राई टू रीच आउट रेलिवेंट गेस्ट्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।